Hello everyone, I'm Dr. Shafila from IGNOU. Welcome to session 9 of Solved Questions Discussion of Environmental Studies. Environmental Studies is one of the subject in graduation courses of IGNOU. The exam pattern for this paper is objective. So let's start with the first objective question of the session. What would be the best method for the disposal of radioactive nuclear waste? So radioactive nuclear waste को dispose of करने का best तरीका that you have to tell. Dumping at the sea, definitely radioactive जो आपके nuclear waste है, so they will be emitting radioactive rays alpha, beta, gamma. So they are obviously very dangerous. So उनको तुम sea पे dump नहीं कर सकते हो. Underground disposal. So yes, this is the best method for the disposal of radioactive nuclear waste. So radioactive nuclear waste को हम लोग एक you can say like एक खड्डा खोद के एक खड्डा डग करके you can put the radioactive nuclear waste. So underground disposal we can do. ठीक है. Landfill disposal definitely no. So landfills are these are the open areas in fact. ठीक है. So landfill जो है इनफैक्ट ओपन जिसको मैं अभी अंडरग्राउंड डिस्पोजल करना मतलब जमीन के अंदर गाड़ देना टाइप्स. ठीक है. सो लैंडफिल जो क्या है बेसिकली दे आर द ओपन आप कह लो कि खड्डास हैं बट ओपन है. ठीक है. सो लैंडफिल में हम लोग इनफैक्ट ट्रीटेड वेस्ट ही डिस्पोज ऑफ करते हैं. सो लैंडफिल्स आर द डंपिंग साइट्स जहां पे हम लोग ट्रीटेड वेस्ट डंप करते हैं. वी कैन नॉट डंप द रेडियो न्यूक्लियर वेस्ट. इंसिनरेशन क्या है? इंसिनरेशन इज बेसिकली आप कह लो कि बर्निंग ऑफ द वेस्ट या वेस्ट को हाई टेम्परेचर पे हीट करना. सो बेसिकली वो बर्न ही होता है. कितना टेम्परेचर? मोर देन 900 डिग्री सेल्सियस. एंड इंसिनरेशन वी हैव इंसिनरेटर्स जो फर्नेस की तरह होते हैं जिसमें हम अपना वेस्ट डंप कर उसमें अपना वेस्ट भर देते हैं और उसको 900 डिग्री सेल्सियस पे बर्न करते हैं. इनफैक्ट मोर देन 900 डिग्री सेल्सियस पे बर्न करते हैं. सो इंसिनरेशन इज बेसिकली फॉर द टॉक्सिक और हैजर्डस वेस्ट और आपका बायोमेडिकल जो वेस्ट है, बायोमेडिकल वेस्ट जो कि इन्फेक्शियस वेस्ट है, उसको भी हम इंसिनरेट करते हैं. इवन व्हेन यू हैव टू रिसाइकल द प्लास्टिक उसके लिए भी हम इंसिनरेट करते हैं. ठीक है. सो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर वेस्ट को you cannot dump at the seaside, you cannot dump in the landfills and incinerate भी नहीं कर सकते. What we can do, we can dispose of it at in the underground by digging the एक dug करके soil में you can dump it underground. ठीक है. So correct answer is B. 2. Moving on to the question number 2. Which one of the following is not a biological method of waste treatment? So biological method of waste treatment मतलब where there is involvement of microorganism. So microorganism जहाँ पे आपके waste को digest कर रहे हैं, so that is biological method. So first is conditioning, second is digestion, third is composting, then lagooning and tank storage. So let's discuss lagooning and tank storage first. So lagoons क्या हैं? These are like ponds. ठीक है. सो जिसमें आप अपने वेस्ट वाटर को, सीमेंटेड पॉन्ड्स हैं जिसमें आप अपने वेस्ट वाटर को अनडिस्टर्ब रखते हो फॉर 24 आवर्स और 48 आवर्स इन द सन. ठीक है. सो लेगून्स में क्या है बेसिकली सनलाइट की प्रेजेंस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स धीरे धीरे मतलब सनलाइट के कारण या ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब्स आपका जो पानी है वो धीरे धीरे ऑलरेडी उसमें जो वेस्ट है वो डिग्रेड हो रहा है. So tank storage is also same. So lagooning and tank storage, these are the examples of biological method of waste treatment. Compost बनाना. So this compost कैसे बनेगी? आपका जो भी solid waste है उसमें आप you will add microbes. ठीक है. Microbes के कारण ही आपकी धीरे धीरे उसमें क्या बनती है? Compost बनती है. Obviously wormy compost में हम worms use करते हैं but normally अगर when you are just keeping your waste as it is and you are putting some water, so already उसमें जो microbes हैं, ठीक है, धीरे धीरे वो आपके वेस्ट को क्या करते रहते हैं? मैन्योर में कन्वर्ट करते रहते हैं. So this is a method of this is a biological method of waste treatment. Digestion, again digestion is through microbes. ठीक है. It is also biological method of waste treatment. So अगर हम बात करें कंडीशनिंग की, ओके, सो लेट्स डिस्कस कंपोस्टिंग अगेन. सो कंपोस्टिंग में अगर हम वर्मी कंपोस्ट की भी बात करते हैं ना तो उसमें भी वर्म्स हैं. सो वर्म्स, अर्थ वर्म्स, सो दैट इज आल्सो बायोलॉजिकल मेथड ऑफ वेस्ट ट्रीटमेंट. ठीक है. वर्मी कंपोस्टिंग भी. कंडीशनिंग क्या है? कंडीशनिंग इज बेसिकली आपके वेस्ट को स्टेबल बना देना.
मतलब उसको कन्वर्ट कर देना टू समथिंग सॉलिड, ताकि आपका वेस्ट उस जगह से हिले ही ना। उसको आप कह लो कि वेस्ट को कवर कर देना विद सीमेंट, या उसको ऐसी एक स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना कि वो ना पानी के साथ कहीं जाए ना हवा के साथ कहीं जाए, मतलब वो उसी जगह पे रहे। सो इट इज नॉट अफेक्टिंग टू द नियर बाय प्लेस, ठीक है। सो कंडीशनिंग जो है ये बायोलॉजिकल मेथड नहीं है, इनफैक्ट ये केमिकल और फिजिकल मेथड में आएगा। क्लियर? सो करेक्ट आंसर इज 1. मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3. Which of the following is not a factor requiring new set of ethics for the environment? So, environmental ethics are basically to improve the relationship of human with the environment, ठीक है। सो आपको बताना है इनमें से कौन सा एक फैक्टर नहीं है रिक्वायरिंग द न्यू सेट ऑफ एथिक्स फॉर द एनवायरमेंट। ऑप्शंस आर चेंजिंग फूड हैबिट्स, ऑप्शन 2 न्यू इफेक्ट ऑन नेचर, सो यू शुड नो द न्यू इफेक्ट्स ऑन द नेचर, किसका क्या इफेक्ट हो रहा है। सो दिस इज अ फैक्टर which is like required for the ethics of environment. New knowledge about nature, this is also one of the factor. Expanding moral concerns about environment, so this is also one of the factor. So changing food habit is not a factor that require new set of ethics for the environment. So again, I will be repeating, environmental ethics are to improve the relation of human with the environment, जिसमें changing food habit ये कोई फैक्टर नहीं है which is required for the ethics for the environment. Question number 4. Which one of the following statement related to economic significance of the forest is not correct? So basically आपको इकोनॉमिक बेनिफिट बताने हैं फॉरेस्ट के, इनमें से बताना है कौन सा इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है। सो forest provides a wide variety of goods and services which include food, fodder and fuel. This is true. फूड भी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, फूड का भी, फॉडर का भी और फ्यूल का भी। दिस इज ट्रू. इट होल्ड्स द की टू न्यूमरस लाइफ सस्टेनिंग प्रोडक्ट्स सच एज फार्मास्यूटिकल, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो हमें फॉरेस्ट जो है इसके बेनिफिट क्या है, हमें दवाइयां मिल रही हैं, मेडिसिन मिल रही हैं, इंसेक्टिसाइड्स भी हम बना रहे हैं, पेस्टिसाइड्स भी बना रहे हैं। दिस इज ट्रू. It protects watersheds and ensure perennial supplies of fresh water. So watersheds क्या है? Watershed आपके हैं जो जहां से आपका रेन वाटर इट इज गेटिंग चैनल टू द रिवर और आपके वाटर बॉडी में वो जा रहा है, जहां से रेन वाटर इज गोइंग टू द वाटर बॉडीज, ठीक है। सो वाटर चैनल. पेरिनियल सप्लाईज मीन्स लॉन्ग सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर। देखो फॉरेस्ट जो हैं दे डू हेल्प इन कंजर्विंग द वाटर, लेकिन वो वाटर शेड को प्रोटेक्ट करना और वो फ्रेश वाटर की कॉन्टिन्यूअस सप्लाई इंश्योर करना, ये फॉरेस्ट जो है इसका इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है। फ्रूट्स, लीव्स, रूट्स, ट्यूबर्स ऑफ द प्लांट फॉर्म द फूड ऑफ द फॉरेस्ट ट्राइब। दिस इज ऑल्सो ट्रू. जो ट्राइब्स हैं, ट्राइबल्स हैं जो they depend upon fruit, leaves, roots and tubers of the plant, जो कि as a plant forms the food of the, ये सारा आपका खाना बनाता है ट्राइबल्स का। सो ट्राइबल पीपल के लिए फॉरेस्ट का ही फ्रूट है, लीव है या रूट्स है या ट्यूबर्स हैं, ये जो प्लांट्स के पार्ट हैं, दे बिकम द फूड ऑफ द फॉर द पीपल हु आर प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट, हु आर लिविंग इन द फॉरेस्ट, ठीक है। सो all are correct except for option number 3. It protect watershed and ensure perennial supply of the fresh water. Moving on to the last question of the session. Which one of the following is not one of the causes of deforestation? Deforestation का कौन सा cause नहीं है? Population explosion. This is the major cause of deforestation. Population explosion हो रहा है, तभी हम लोग उनको compensate करने के लिए हम लोग फॉरेस्ट क्लियर कर रहे हैं, ताकि हम लोग वी आर लाइक डिस्ट्रॉइंग द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ, क्योंकि हमें अपनी पॉपुलेशन को क्या करना है, कंपनसेट करना है। सो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. फॉरेस्ट फायर, इट कैन बी नेचुरल, इट कैन बी मैन मेड एंड दे आर डेफिनेटली causes of deforestation. Pest attack, it can be natural, it can be man made. अगेन पेस्ट का अगर अटैक होता है तो डिफॉरेस्टेशन होता है। फोर्थ ऑप्शन इज राइज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. सी, डिफॉरेस्टेशन होने से आपका एयर में CO2 इंक्रीज हो रहा है, दिस इज ट्रू, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एयर में बढ़ रही है उसके कारण डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, दिस इज नॉट ट्रू.
सो फोर्थ ऑप्शन जो है इट इज अदर वे राउंड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड आपका डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, आपको पता है कि आपके जो प्लांट्स हैं बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे आर यूजिंग CO2 एंड दे आर प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन। तो अगर आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो तो एयर में CO2 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, लेकिन CO2 इंक्रीज होने के कारण डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ये गलत है। सो करेक्ट आंसर जो है दैट इज 4. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन? दैट इज 4, rise in CO2 in the atmosphere. So this was the last question of the session. So learners, those who are doing either PG or UG degree from IGNOU Dost is there to help you out. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. We are giving value-added notes to our learners and also helping our learners for exam through Exampedia. In IGNOU Dost, a continuous support from professional mentors is there who will be like from your subject area only, and they will be helping you in completing and submitting your assignments for your career development and even for scaling your personal and social development. For more information, you can reach us out on the number 7594939297 via call or WhatsApp. You can also visit the official website of IGNOU Dost. Thank you. See you in the next session.